हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही? देखो सचिन जी म्यूट है। सचिन वही म्यूट है। हाँ हाँ जी ठीक है। सचिन हाँ जी हो गया, मेरे को आपने म्यूट रखा हुआ था। नहीं, आपको अनम्यूट कर दिया था, मेरे ख्याल में बार बार हो गया दोबारा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा स्टार्ट। हाँ ओके, हेलो एवरीबॉडी। Today my topic is motor insurance and its add-on covers. Basically, insurance is a, everybody knows that it's very vast topic. It's very vast subject. It's non-life insurer and life insurance. Two types of insurances are there. So topics are mm, very elaborative topics, and but I choose that motor policy. I choose motor policy because every day we daily use vehicles, and we should know that what is the add-on cover we can take, or how can we deal with that, how insurance business is going on of the motor policy, how they sell the policies, how they do profits, and how IRDA they controls the insurance. Actually, insurance business basically is controlled by the IRDA. It's everybody knows the definition, Insurance Regulatory Development Authority. I think everybody knows that. There are many types of policies, but we start with the motor policy. We restricted with the motor policy only. Now, what is motor policy? Basically, motor policy is its primarily use is to provide financial protection against the physical damage, bodily injury resulting from traffic collision and liability. It may also financial protection from the theft also. That is the reason we do for this motor policy. Everyone knows that. And I'll brief up only that there are two types of policies. One is a liability only policy, and one is a package policy. Every insurance company, they deal with only two policies, and they issue liability and package. Earlier it was a comprehensive, because comprehensive policy is basically a package policy. Now they use the term package policy as per IRDA. What is the act-on policy? Basically, last I think on Thursday, Asim already covered that third party is mandatory insurance as per Section 146 also, Motor Vehicle Act. This is third party insurance is mandatory. So any insurer cannot say no to you कि वो इंश्योरेंस नहीं करेगा आपके व्हीकल का, because it is mandatory under Section 146, or without that you cannot travel or you cannot come on a public place. It is an offense also. We know that driving uninsured vehicle is offense under Section 196 of the Motor Vehicle Act. So it is very much required liability policy. Second is the package policy. As we know, package policy cover both liability only, third party liability, as well as the own damage part of the vehicle. But we have seen that there are number of exclusions in this package policy also. If you take a package policy, you cannot say that I have every cover in with me or with my vehicle. These days we know all that, because consequential loss, depreciation, wear and tear, mechanical, electrical breakdown, return to invoice, there are a number of policies these days and which are not covered in an ordinary package policy. Otherwise, in ordinary package policy, you will get a cover of on damage only. But we want that depth cover. हमने सब लोगों ने सुना होगा कि डेप्थ कवर होता है आजकल पॉलिसी, जिसमें क्या होता है कि डेप्रिसिएशन का 0 डेप्रिसिएशन होता है, हमें कुछ नहीं पे करना होता. लाइक देयर इज अनदर कवर्स आल्सो ऐड ऑन. इसको हम लोग कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस कहती है. जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉक है, वो ऑनरी पॉलिसी में नहीं कवर होता. जैसे गाड़ी के इंजन में पानी चला जाता है और आपकी गाड़ी इंजन सीज हो जाता है, तो फॉर दैट यू हैव टू टेक ए हाइड्रोस्टैटिक लॉक cover. It is an add-on cover. For that you have to pay extra premium for this cover. ऐसे ही मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल IMT बता दो इनको. आई सपोज IMT से आगे फिर क्लैरिटी हो जाएगी, है ना? वो मैं आगे IMT भी आगे कवर कर दूंगा कि IMT कौन कौन से किसमें है. जस्ट ओवरव्यू, आई एम जस्ट ओवरव्यूइंग दैट. ठीक है. क्या होता है कि जैसे एक नई पॉलिसी आजकल में एक और आई हुई है, जैसे रिटर्न टू इनवॉइस पॉलिसी. लाइक अगर आपकी गाड़ी, ज्यादातर पहले क्या होता था, ये हाई एंड गाड़ियों में आती थी ये पॉलिसी. अब ये जो नॉर्मल है हाई गाड़ियां जो 11 लाख 12 लाख से स्टार्टिंग होती है, उनको भी ये पॉलिसी इशू हो जाती है. लाइक आपकी गाड़ी पे थेफ्ट हो जाता है या टोटल लॉस हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल परचेज ए न्यू व्हीकल. वो आपको एक नया व्हीकल परचेज करके देंगे, उसकी आरसी बनवा के देंगे और उसकी इंश्योरेंस भी करके देंगे. ये पॉलिसी थोड़ी कॉस्टली होती है, बट ये है कि
एट द टाइम ऑफ द थेफ्ट, जैसे गाड़ी थेफ्ट होती है तो आपको सिर्फ आईडी भी मिलता है, इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। आपको आरसी के जो चार्जेस हैं जैसे 80,000 आपको पता ही होगा, 8% है पंजाब में, चंडीगढ़ में जितना है वो आपको वो नहीं मिलता। बट इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी विल गिव यू न्यू व्हीकल, उसी मॉडल का जो मार्केट वैल्यू होगी वो आपको देगी। और ऐसे ही देयर आर सम अदर पॉलिसीज आल्सो, लाइक जिसमें क्या होता है कि लाइक इफ यू आर इन अ वे समवेयर, आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो कहीं आप बहुत सड़क पे हो, कहीं बाहर हो, आउटर में हो, यू आर नॉट इन योर सिटी, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको टो वे की फैसिलिटी देती है और साथ में वो आपको होटल फैसिलिटी भी देती है कि दैट वो आपकी गाड़ी आप कॉल करोगे टोल फ्री नंबर पर, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको होटल का रेंट भी वही देंगे, आपको एक होटल लेके देंगे, जब तक आपकी गाड़ी ठीक नहीं हो जाएगी आपको गाड़ी देंगे, साथ में होटल का बिल देंगे, आपका फूड का बिल देंगे। लाइक आज की सिनेरियो में इंश्योरेंस कंपनी बहुत आगे आ चुकी हैं, दे लाइक ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप इवन यू कैन नॉट थिंक यार ऐसी पॉलिसी भी है, मतलब वी आर नॉट अवेयर विद दैट, इज द रीजन आई एम explaining this, that we should know that what type of policies we have in the market and we can इसका नाम choose क्या था? that policies। रिटर्न कवर, क्या नाम था इसका? ये आप इसका कवर का एक रिटर्न टू इनवॉइस होता है, रिटर्न टू इनवॉइस। रिटर्न टू इनवॉइस। ये कवर्स होते हैं, ये आप एड ऑन कवर्स हैं, ये आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करो, ज्यादा पे उस हिसाब से मिल जाती है। आप एक बार जो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो तो आप पूछ सकते हो कि द बेस्ट कवर कौन कौन सा है। रिटर्न टू इनवॉइस है, जिसमें मैकेनिकल भी कवर है, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक लॉक, क्योंकि आपको पता ही होगा जैसे समर सीजन में, रेनी सीजन में बहुत सारे व्हीकल्स में हाइड्रोस्टैटिक लॉक हो जाता है, इंजन सीज हो जाता है, और बेसिकली विल कॉस्ट अबाउट अराउंड 4-5 लाख, तो इंजन में चला जाता है 6-7 लाख। तो वो अगर आपको हाइड्रोस्टैटिक लॉक आपका कवर है, क्योंकि नॉर्मल पैकेज पॉलिसी में वो कवर नहीं होगा, फॉर दैट यू हैव टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम, और वो कई बार एजेंट नहीं बताते और वो आपको नॉर्मल पैकेज पॉलिसी दे देती है और डेप इंश्योर के साथ। डेप कवर इज नॉट नेसेसरी। डेप कवर का मतलब है कि आपको पॉलिसी में जो प्लास्टिक पार्ट्स और जो डेप्रिसिएशन है वो नहीं देनी है, बट हाइड्रोस्टैटिक लॉक इज ए सेपरेट थिंग। जैसे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, जैसे ऑयल है, जैसे नट बोल्ट्स हैं, जैसे ये चेंज होते हैं तो यू हैव टू पे फॉर दैट, इवन देन यू हैव अ डेप्रिसिएशन पॉलिसी। आप ये नहीं कह सकते कि यू हैव अ डेप कैप पॉलिसी और मुझे ये भी दो। इवन टायर्स भी कवर हो जाते हैं पॉलिसीज में, जो वियर एंड टियर से, वो डिपेंड करता है कि उसका प्रीमियम हाई होगा ऑब्वियसली। बट ये पॉलिसीज मार्केट में है जो इट्स वेरी गुड पॉलिसीज, जो हम लोग ले सकते हैं पर हम अवेयर नहीं है। बट एक्चुअली इसमें एक और चीज है कि पहले क्या था कि इन 2000 देयर वर ओनली 4 कंपनीज पब्लिक पीएसयूज, नेशनल, ओरिएंटल, ये और यूनाइटेड, न्यू इंडिया, नेशनल, ये 4 कंपनीज थी, और प्राइवेट इंश्योरेंस का कोई रूल नहीं था इसमें। इन 2000 में प्राइवेट इंश्योरर जो है ये लोग मार्केट में आए। इनके पीछे वो था कि इनको आने की एंट्री इसलिए दी गई बिकॉज मार्केट में थोड़ा सा ज्यादा वो दिखाया जाए कि मार्केट में कंपटीशन है, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो क्या हुआ उसके बाद 2000 के बाद 2007 में से पहले क्या था 2007 से कि IRDA इज ए बॉडी व्हिच कंट्रोल्स द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस। क्या कोई भी पॉलिसी इशू करनी है, उसका प्रीमियम क्या होगा, उसका टैरिफ क्या होगा, वो IRDA डिसाइड करती थी। OD पार्ट जैसे ओन डैमेज पार्ट है, थर्ड पार्टी पार्ट है, दैट वर आल्सो डिसाइडेड बाय द IRDA ओनली। इंश्योरेंस कंपनीज अपने रेट देती थी कि दिस इज आवर रेट्स इंश्योरेंस एज पर, वो उसके हिसाब से IRDA डिसाइड करती थी कि दैट इज द रेट ऑफ द 2 व्हीलर, दैट इज द रेट फॉर द 4 व्हीलर, जो भी है ये गुड्स व्हीकल का रेट होगा। बट क्या हुआ कि 2007 में डी टैरिफिंग हो गई। डी टैरिफिंग क्या होती है, आई विल एक्सप्लेन दैट। डी टैरिफिंग का मतलब है डी टैरिफिंग वुड अलाउ कंपनीज टू फिक्स द प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे ऑफर्ड based on their own analysis and perception of the risk involved in each case without governmental regulation। क्या होता था, जैसे पहले जो ऑन डैमेज पार्ट था और थर्ड पार्टी पार्ट था, दैट वर कंट्रोल्ड बाय द IRDA ओनली। अब डी टैरिफिंग के बाद क्या हो गया कि थर्ड पार्टी तो IRDA के कंट्रोल में है अभी भी, थर्ड पार्टी की रेट्स की जो फिक्सिंग है दैट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द IRDA, बट एज फार एज द ओन डैमेज पार्ट वो उन्होंने इंश्योरेंस को दे दिया कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, बेशक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, दे कैन डिसाइड देयर ओन। वो देते हैं, वो लोग अपना प्रीमियम बताते हैं कि ये। अब एक्चुअली जैसे आप जाते हो किसी के पास,
अब आप मार्केट में देखते हो कि कितना पॉलिसीज है, बहुत सारी, और हर इंश्योरेंस कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, और हम लोगों की टेंडेंसी होती है जो हमें सबसे अच्छा कोट दे हम उसकी पॉलिसी ले लेते हैं। कई इंश्योरेंस कंपनी है वो कहती हैं हमने इसको बैन किया हुआ है, क्या कहते हैं, जैसे ये हुंडई की गाड़ियां नहीं करते, क्रेटा नहीं करते, जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां वो गाड़ियां बैन कर देती हैं कि नो एजेंट विल डू दिस बिजनेस। वो अपना एनालिसिस करते हैं कि दिस इज अ लॉस मेकिंग बिजनेस, दिस व्हीकल इज अ लॉस मेकिंग। वो एनालिसिस करते हैं कि इस गाड़ी के एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लाइक देयर इज सम प्रॉब्लम इन दिस व्हीकल, ये बहुत फास्ट चलती है, व्हाटएवर इज दैट, तो दे अकॉर्डिंगली दैट आफ्टर डी टैरिफिंग ओनली। ये डी टैरिफिंग उन्होंने इसलिए की थी बिकॉज टू प्रमोट अ फ्री मार्केट, जिससे किसी को सबको फ्री मार्केट मिल जाए। बट इसमें क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम क्या आई कि ये प्राइस वॉर हो गई है। अभी आप देख सकते हो कि हर इंश्योरेंस कंपनी अपना प्राइस कोट करती है। कोई कहता है ये है, दैट इज अ ट्रू, अंडर 146 दे कैन नॉट से नो टू यू। बट वो क्या करते हैं, वो अपना प्रीमियम बढ़ा देते हैं। वो कहते हैं कि हम इस गाड़ी पर लोडिंग लगाते हैं, या हम इस गाड़ी का इतना प्रीमियम ही ओडी का सेट करेंगे। टीपी प्रीमियम है वो सेम रहता है, वो आईआरडीए डिसाइड करती है एवरी ईयर या एवरी 6 मंथ उनके सर्कुलर्स आते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि थर्ड पार्टी प्रीमियम कैसे फिक्स होता है नावल से, थर्ड पार्टी प्रीमियम ऐसे फिक्स होता है कि दे गो अकॉर्डिंग टू द जो डाटा है, वो जो इंश्योरेंस कंपनी दे ऑल सेंड टू द आईआरडीए कि व्हाट आर द लॉसेस। ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज गो टू आईआरडीए से थर्ड पार्टी लॉसेस बहुत है, हमें ज्यादा क्लेम्स रेशियो उनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो वी नीड दैट कि आप जो थर्ड पार्टी प्रीमियम है उसको इंक्रीज करो। दैट इज द रीजन जो ये फॉर्ज क्लेम होते हैं, फेक क्लेम्स होते हैं, इनमें से हमें प्रॉब्लम ये आती है कि आईआरडीए हमारी थर्ड पार्टी प्रीमियम अल्टीमेटली, जजेस तो कंपनसेशन दे रहे हैं बट अल्टीमेटली इट गोज फ्रॉम आवर ओन पॉकेट बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज क्राई एंड ह्यू एंड स्टार्टेड ह्यू एंड क्राई एंड दे गो टू आईआरडीए। आईआरडीए कहता है ठीक है, आईआरडीए डाटा देखता है कि हाँ जो टीपी लॉसेज है वो बहुत बढ़ गए हैं, तो थर्ड पार्टी प्रीमियम इंक्रीज होना चाहिए। दैट इज द रीजन हम लोग देख रहे हैं कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आज पॉलिसी करवाई है और नेक्स्ट ईयर मेरी पॉलिसी कम हो जाए, ये बढ़ता ही जा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो मुझे प्रीमियम हर साल ज्यादा ही देना पड़ रहा है। हाँ, वो अगर मैं आईडीवी वो लेता हूँ नो क्लेम बोनस तो मुझे बेनिफिट मिलता है, अदरवाइज मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ऐसे ही ये डी टैरिफिंग का कॉन्सेप्ट था जो 2007 के बाद शुरू है। इससे कॉम्पिटिटिव मार्केट हो चुकी है, प्राइस हो चुकी है आप, बट नो इंश्योरेंस कंपनी से नो टू यू। अगर आप चाहते हो कि आपकी Hyundai आप करवाना चाहते हो इंश्योरेंस किसी कंपनी से, वो आपको फोर्स नहीं कर सकते, उनको करना पड़ेगा इंश्योरेंस आपका। बट प्रॉब्लम इज दैट कि वो आपको हायर रेट कोट कर सकते हैं फॉर दैट, बिकॉज आप भी एडमेंट नहीं होगे, आपको पता है कि जो आपको कम प्रीमियम दे रहा है वी शुड गो विद दैट ओनली, तो हम लोग वही चूज करते हैं, है ना। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, these are the two policies, जो एक्ट ऑन पॉलिसीज और जो पैकेज पॉलिसीज हैं। और एक और चीज की लायबिलिटी ओनली पॉलिसी में जो पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है ना वो भी इंक्लूड होता है। ये इसका डिस्प्यूट था कि ये पहले कुछ लोग कहते थे कि नहीं, ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी जो है उसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर मैंडेटरी नहीं है। बट पर्सनल एक्सीडेंट कवर आजकल आप थर्ड पार्टी लेते हो तो आईडी ने कहा है कि वो भी दो आप। तो थर्ड पार्टी में पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो होता है ऑनर ड्राइवर का, ऑनर ड्राइवर मींस रजिस्टर्ड ऑनर, they should be clear. And secondly I'll go the first thing is GR2. I am discussing about the Indian motor tariff. Everybody must know that Indian motor tariff actually क्या है कि इंश्योरेंस बिजनेस जितना भी है ये गवर्न आईआरडीए गवर्न से ही चलता है, और ये जो आईएमटी है ये रेट फिक्सिंग होता है। इसमें आईएमटी से ही पता चलता है, ये इंश्योरेंस और इंश्योरेंस एक्ट में भी मेंशन है कि ये रेगुलेटिंग बॉडी है जो ये बताएगी कि फिक्सिंग प्राइसिंग कैसे होगी, थर्ड पार्टी की प्राइसिंग कैसे होगी, एड ऑन कवर कैसे दिए जाएंगे, एड ऑन कवर के प्रीमियम क्या होंगे, जैसे भी है। और सबसे पहला चीज है कि GR2 डील्स विद द प्रपोजल फॉर्म, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी से। अगर इफ यू वांट टू ऑप्ट एड ऑन कवर, आपको प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करना पड़ता है कि आई वांट दिस कवर इन अ प्रपोजल फॉर्म। अकॉर्डिंगली दे वो अपना प्राइस कोट करते हैं, अंडरराइटर अपना प्राइस कोट करता है, वो बताता है कि ठीक है इस व्हीकल को मैं इतना ही दूंगा। तो एवरी कंपनी हैज ए अंडरराइटिंग टीम एंड दिस प्राइसिंग these all have been decided by the underwriters only, बिकॉज आपकी गाड़ी 3 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, जैसे आपकी गाड़ी के
आपकी गाड़ी न्यू इंडिया से इंश्योरेंस है, ठीक है, तो लाइक उसमें आपके 3 क्लेम्स हैं पहले ही आप ले चुके हो, तो फर्स्टली व्हाट अंडरराइटिंग दे विल डू, वो चेक करेंगे कि इसके क्लेम्स तो नहीं है, देयर इज अ वन साइट देयर ऑल इंश्योरर्स, जनरल इंश्योरेंस जितने भी हैं उनको असेस होता है उस साइट पे जाने का, वो साइट पे जाके आपके क्लेम असेस कर सकते हैं। आप जो भी क्लेम करते हो वो एवरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पोर्टल पर डालना कि ये गाड़ी का ये क्लेम आ गया, तो एवरी कंपनी कैन सी, आप उसको ये नहीं कह सकते कि मेरे तो क्लेम ही नहीं है मेरी गाड़ी में, वो चेक कर लेते हैं और उसके बाद अंडरराइटर डिसाइड करता है कि मैं इसका प्रीमियम क्या कोट करूंगा ऑन डैमेज का, नॉट फॉर द थर्ड पार्टी, बिकॉज थर्ड पार्टी इज बीइंग रेगुलेटेड बाय द आईआरडी ओनली। नेक्स्ट चीज क्या आती है, आपने प्रपोजल फॉर्म में एड ऑन कवर दिया, अंडरराइटर ने डिसाइड किया, आपको प्रीमियम कोट किया, इफ इट इज ओके टू यू, यू कैन गो फॉर दैट। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मुझे प्रीमियम बहुत ज्यादा लग रहा है, आई विल नॉट गो विद दैट, आई कैन चूज अनदर इंश्योरेंस कंपनी, यू कैन गो टू अनदर इंश्योरेंस कंपनी ऑल्सो। वहां फिर वो, क्योंकि एवरी कंपनी का अपना प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उनके अपने अंडरराइटिंग प्रॉफिट्स होते हैं, आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट इज अंडरराइटर प्रॉफिट ऑल्सो। अकॉर्डिंगली वो फिर डिसाइड करते हैं, किसी कंपनी को लगता है कि नहीं मुझे बिजनेस करना है, मैं दूंगा। रिलायंस है, जैसे आप रिलायंस के पास जाते हो, आपकी गाड़ी के 4 क्लेम है, वो फिर भी आपको एंटरटेन करते हैं और आपकी गाड़ी को पॉलिसी बहुत कम प्रीमियम में भी दे सकते हैं, बिकॉज ओडी पार्ट इज अप टू देम ओनली, वो अपना ओडी पार्ट आपको अपने हिसाब से देते हैं सो दैट दे कैन ग्रो विद देयर बिजनेस। एवरी कंपनी हैज अ डिफरेंट स्ट्रेटजी टू ग्रो, टू मेक ए बिजनेस, दिस इज द रीजन। And the next thing which come is GR8. GR8 deals with the insured declared value. Just we all know that what is the IDV. It is basically called IDV. All the insurance companies and courts also deals with IDV. IDV क्या होता है? IDV is a sum insured of your vehicle. Like जो ये बेसिकली डिसाइड होता है कि जो मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, वो अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करते हैं आईडीवी। ये आईडीवी क्या होता है? आईडीवी का एवरी ईयर ये डेप्रिशिएट करती है। पहले ऑप्शंस थी आपको, आप आईडीवी को बढ़ा सकते थे, अब भी है, बहुत कम इंश्योरेंस कंपनीज हैं जैसे 15% तक मैक्सिमम आप अपना आईडीवी बढ़ा सकते हो। वो आपको किस में हेल्प करता है कि जैसे आपका व्हीकल थेफ्ट हो जाए बाई चांस, जब आपकी गाड़ी डैमेज होती है उसमें तो कोई हेल्प नहीं होगा आईडीवी बढ़ाने का आपको, वो आईडीवी बढ़ाओगे तो कंपनी जो कैलकुलेशन सर्वेयर बनाएगा स्पेयर पार्ट्स की, वो तो उसी हिसाब से बनेगा असेसमेंट। बट जैसे आपकी व्हीकल का पिछले साल आईडीवी था 10 लाख, अब वो रिड्यूस हो जाएगा 9 लाख। इन केस आपकी गाड़ी का थेफ्ट होता है तो आपको 9 लाख से मिलेंगे। अगर आपने 15% उसके एक्स्ट्रा प्रीमियम देके उसको 9.5 लाख कर लिया है, 10 लाख कर लिया है, तो अगर आपकी गाड़ी को थेफ्ट होता है तो आपकी गाड़ी आपको 9,30,000 जो 50,000 जो भी आईडीवी होगा आपको वो मिलेगा फिर। तो दिस इज आईडीवी जो होता है कि वो जो आईडीवी आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड आप कर सकते हो। बट अभी ज्यादा इंश्योरेंस कंपनीज आईडीवी बढ़ाती नहीं है, पर कई बढ़ा भी बहुत देती हैं। बाद में क्या होता है फिर वो क्लेम देती नहीं है, वो कहती है कि नहीं आपने गलत ले लिया आईडीवी, आपका लास्ट आईडीवी 8 लाख का था, आपने 10 लाख का ले लिया। वो एक्चुअली होता है क्या है कि एजेंट्स कहते हैं कि मैं आईडीवी आपका बढ़ा देता हूँ और पॉलिसी में आप प्रीमियम पे कर देते हो और आईडीवी आपका 8 से 10 लाख कर देते हैं। एक्चुअली इट शुड बी रिड्यूस्ड, वो पर आप एक्स्ट्रा पेमेंट देकर बढ़ा देते हो। जब क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि अब मैं 2 लाख एक्स्ट्रा क्यों दूं, उनकी प्रीमियम तो उसका सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 500 या ज्यादा से ज्यादा 400 तक ही यहाँ पे करेंगे और आईडीवी आपको ज्यादा मिल जाएगी। तो दिस इज आईडीवी बेसिकली। आईडीवी में क्या होता है एक और चीज की, GR8 में एक टोटल लॉस होता है कि जैसे आईडीवी का बेनिफिट कब मिलता है आपको, टोटल लॉस में। जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो एक टर्म यूज होती है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, एक होता है टोटल लॉस। तो इसमें क्या होता है कि अगर गाड़ी की रिपेयर लायबिलिटी 75% से ज्यादा चली जाती है तो आपकी गाड़ी टोटल लॉस डिक्लेयर हो जाती है। इफ योर व्हीकल इज अ टोटल लॉस देन आपको क्या होता है, आपको आईडीवी पूरा का पूरा मिल जाता है। वो अगर आपने डेप्रिसिएशन उसमें नहीं कटता, अगर आपने डेप्रिसिएशन की पॉलिसी नहीं भी ले रखी है, सपोज यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर डेप्रिश्योर और आपने सिंपल ले रखी है, गाड़ी की थेफ्ट हो जाती है, गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है किसी भी रीजन से कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, उसकी रिपेयर लायबिलिटी 75% से ज्यादा चला जाती है, तो उस कंडीशंस में इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको आईडीवी पे कर लेती है और जो रैक होता है जैसे आपका सैलवेज वैल्यू आपका जो गाड़ी का बच जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रख लेती है। बट इसमें देयर इज ए
इसमें एक थोड़ा सा वो है, फ्लॉ सा है कि अभी इट इज नॉट क्लियर, देयर आर नंबर ऑफ जजमेंट्स ऑन दिस पॉइंट कि ये टोटल लॉस कैसे डिक्लेयर होगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि वेदर टोटल लॉस विल बी व्हेन रिपेयर लायबिलिटी एक्सीड 75%, व्हेन द लायबिलिटी ऑफ इंश्योरेंस आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड 70%। ये यूजुअली जीआर में मेंशन है कि जब रिपेयर लायबिलिटी 75% से एक्सीड कर जाती है तो वो मिलता है। और जो ये जो आईएमटी है ये भी कहती है कि जो रिपेयर लायबिलिटी है एज पर लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि मेरी लायबिलिटी तब आएगी जब मेरा सर्वेयर बोले आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन की 75% से ज्यादा है। तब अगर 75% से वो, तो एक्चुअली क्या होता है फिर तो इंश्योरेंस कंपनी के हाथ में बॉल चली गई कि उसको 75% में लेके आना या नहीं लेके आना रिपेयर लायबिलिटी। अब ऑन अदर साइड अगर हम देखते हैं तो जैसे जो सर्विस स्टेशन है, ऑथराइज सर्विस स्टेशन है, वो गाड़ी को एक्सजरेट करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ये पार्ट भी चेंज करना, ये पार्ट भी चेंज, ये पार्ट चेंज, तो वो तो फिर गैरेज के हाथ में हो गया 75% को एक्सीड करना। वो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ नहीं कर सकती। तो इस पर कंफ्लिक्ट है अभी भी कि ये 75% कहाँ जाएगा। कि इंश्योरेंस कंपनी पर यूजुअली कोर्ट्स क्या करती हैं, कोर्ट्स यही देखती हैं कि रिपेयर लायबिलिटी, बिकॉज वर्ड यूजेस रिपेयर लायबिलिटी, क्योंकि जो टोटल लॉस है वो GR8 है, और GR8 कहता है कि टोटल लॉस जब देखा जाएगा जब रिपेयर 75% से एक्सीड हो जाती है। और उसमें जो मेन पॉइंट है देखने वाला है कि उसमें ये चीज देखनी है कि जो लायबिलिटी है वो कैसे जा रही है। जैसे सर्वे रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट तो अपने हिसाब से बना देगा कि मेरा 75% गया ही नहीं, पर उसमें डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर रहा है वो। और टोटल लॉस के केसेस में डेप्रिसिएशन नहीं देखी जाएगी, टोटल लॉस में डेप्रिसिएशन नहीं देखी जाएगी, बिकॉज डेप्रिसिएशन देखी जाएगी GR7 में, जहां पार्शियल लॉस क्लेम आता है। जैसे मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उस गाड़ी में कुछ स्पेयर पार्ट डैमेज हो गया, तो उसमें डेप्रिसिएशन कटेगी अगर मेरे पास वो डेप्रिश्योर कवर नहीं है, तो उसमें डेप्रिसिएशन करते करते वो चली जाएगी नीचे। फिर तो ऐसा होगा ना, फिर तो हर बंदा ये बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी की मेरे पास है ही नहीं जी पॉलिसी ये। बट अगर मेरे पास, मैंने ये चीज देखी है, इसमें जो 75% मैंने डेप्रिसिएशन नहीं डिडक्ट की है, तो फिर तो रिपेयर लायबिलिटी देखी जाएगी, इट्स ऑब्वियसली। तो मेरे हिसाब से जो मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि क्योंकि डेप्रिसिएशन आप काट नहीं सकते, जो सर्वेयर जो सेस करता है लायबिलिटी, वो डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी डिसाइड करता है। वो एक्चुअली क्या करता है, वो 75% एक्सीड होने नहीं देता, और वो 75% कई बार होती नहीं है। तो ये झगड़ा चलता है अभी भी, ये कि इंश्योरेंस कंपनी और दोनों के बीच में, बट इट्स अप टू अस कि देयर आर जजमेंट ऑन द बोथ द साइड आल्सो, कि हम लोग इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देयर इज वन मोर टर्म, देयर आर टू टर्म्स जो हम लोगों को, जैसे हम गाड़ी का डैमेज होता है तो हम लोग एक दो टर्म्स इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट यूज करती हैं। वन इज द कैश लॉस एंड वन इज द नेट ऑन सैल्वेज। वन इज कैश लॉस एंड वन इज नेट ऑफ सैल्वेज। ये जो वर्ड्स हैं ये आईएमटी में कहीं भी मेंशन नहीं है अदरवाइज, बट इंश्योरेंस कंपनीज की अपनी टर्म्स हैं जो ये सेटल करती हैं। एंड व्हाट इज द कैश लॉस? अब ये कैश लॉस क्या है कि हम लोग जाते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, जी मेरी गाड़ी तो टोटल लॉस है, आप दे नहीं रहे, तो वो कहते हैं हम लोग इसको कैश लॉस पे सेटल कर देते हैं। व्हाट इज कैश लॉस? Cash loss, it is a term which is the insurer. It means insurance company will pay you lump sum amount to the insured when vehicle is no total loss. Insured क्या करता है, आपको आपकी गाड़ी का जितना डैमेज है उतना पैसे दे देते हैं, एक लंप सम अमाउंट बता देते हैं कि हम तो जी 5 लाख देंगे, ठीक है। और जो सैल्वेज है, आपकी गाड़ी का रैक वैल्यू है, वो अपने पास रखो, आप उसको सेल कर सकते हो मार्केट में। जैसे 5 लाख आपको गाड़ी का मिल गया, और आपकी इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप सैल्वेज बायर मार्केट में मिल जाते हैं, आपको पता है, वो सैल्वेज बायर से आप अपना रैक वैल्यू की लगवा के वो दे सकते हैं। इसको कहते हैं वो लोग कैश लॉस पर मैंने ये आपका क्लेम सेटल कर रहे हैं, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर विद दैट। वो जब हम जाते हैं अपनी गाड़ी का क्लेम मिलने तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। दैट इज द रीजन आई एम कमिंग विद दिस टॉपिक्स आल्सो, कि दैट वी शुड नो दैट कि व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, व्हाट दे आर सेइंग। सेकंड इज दैट नेट ऑफ सैल्वेज, वो यूज करते हैं एक वर्ड। नेट ऑफ सैल्वेज क्या क्या मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी हमें लंप सम अमाउंट पे कर देती है इंश्योर्ड को। इसमें वो कहते हैं कि व्हीकल हम लोग टोटल लॉस में कंसीडर नहीं कर रहे,
इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, दे विल अरेंज द बायर, वो आपको एक बायर ढूंढ के देती है, जैसे सैलवेज आपको नहीं देंगे, वो आपको एक बायर ढूंढ देंगे आउटसाइड, बाहर ही। आप उस सैलवेज को आपसे बाहर बाहर से आपका कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे और आप उसको बेच सकते हो। मतलब एक्चुअली क्या होगा कि अगर सैलवेज इंश्योरेंस कंपनी रखेगी तो उसको पहले अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना पड़ेगा, विदाउट ट्रांसफर वो जाएगी नहीं, और वो कोर्ट की प्रॉपर्टी भी होगी, केस प्रॉपर्टी, अगर उसमें कोई थर्ड पार्टी डेथ इन्वॉल्व है या कोई इंजरी इन्वॉल्व है। तो इंश्योरेंस कंपनी यूजली ये कहती है कि रैक आप रखो, बिकॉज इट्स योर रैक, क्योंकि उस रैक को मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, जब तक केस प्रॉपर्टी है मैं उसको बेच भी नहीं सकता। तो इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली टेक दिस डिफेंस, आपको यही कहती है कि आप अपना जितना अमाउंट है लमसम वो ले लो और बाहर से सैलवेज बेचना बेच दो, इट्स अप टू यू, आप एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर दो, हम लोग तो फाइल कर नहीं सकते, और वो उनको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड ऑनर को ही मिलता है नेट ऑन सैलवेज। तो दीज टू टर्म्स बेसिकली यूज होती हैं, कैश लॉस, नेट ऑन सैलवेज, और एक ये टोटल लॉस है। टोटल लॉस तो आप लोगों को पता है, ये 75% रिपेयर लायबिलिटी जाएगी तो आपका व्हीकल टोटल लॉस हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग आएंगे इन टर्म्स के बाद, इट्स इम्पोर्टेंट जी आर 17। आई थिंक ये GR 17 असीम ने भी डिस्कस किया था, हम लोगों ने, विशाल ने भी डिस्कस किया था कि GR 17 क्या है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग अपनी गाड़ी बेच देते हैं किसी दूसरे पर्सन को, तो आरसी तो ट्रांसफर करवानी होती है, उसके साथ देयर इज ए नेसेसिटी कि हमें पॉलिसी भी ट्रांसफर करवानी पड़ती है, बिकॉज अगर हम पॉलिसी नहीं ट्रांसफर करते तो नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक चीज है, बिकॉज इट्स अ वर्ड इन द नो, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बिकॉज आपकी गाड़ी का में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइक मेरी एक गाड़ी है, मेरे पास है, अगर वो चोरी हो जाती है तो मेरा उसके फाइनेंशियल लॉस होता है मुझे, दैट इज कॉल्ड ए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मेरा उस गाड़ी पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, क्योंकि अगर वो चोरी होती है तो मुझे फाइनेंशियल लॉस होता है। supposedly if I sell my vehicle to some another person, अगर वो गाड़ी चोरी होती है उसके पोजीशन से, तो मेरा तो कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं ना हुआ, दैट मींस मेरा नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस गाड़ी में नहीं है। तो दिस इज द रीजन दैट इंश्योरेंस कंपनीज ये कहती हैं एज पर GR 17 यू हैव टू ट्रांसफर योर व्हीकल। क्या होता है एज फार एज द थर्ड पार्टी लायबिलिटी में, क्या होता है कि थर्ड पार्टी लायबिलिटी में ऑटोमेटिक इंश्योरेंस ट्रांसफर हो जाती है थर्ड पार्टी में, बट नॉट टू द ओन डैमेज। अगर आपको ओन डैमेज लेना है या आपको लेना है जिसको देनी है, अगर आप डिस्क्लोज कर देते हो कि मैंने गाड़ी बेच चुका हूँ, तो दैट मींस आपका नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट चला गया। यू वुड नॉट हैव एनी फाइनेंशियल लॉस इफ थेफ्ट इज अकर्ड और इफ एनी डैमेज इज अकर्ड टू योर व्हीकल, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही चला गया उसमें, मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस ही नहीं हो रहा उससे। तो दिस इज ए GR 17 which deals with honor of on transfer of ownership, liability cover और पैकेज पॉलिसी इज डीम टू हैव बीन ट्रांसफर माना जाता है, और उसमें ट्रांसफरी को विद इन 14 डेज ऑफ ट्रांसफर रिटर्न में मेंशन करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को विद रजिस्ट्रेशन के साथ, और 50 रुपीज का इसमें वो प्राइस चार्ज होता है कि आपको फी देनी पड़ती है कि मैंने ये गाड़ी इस दिन इसको बेच दी है, अब मुझे नया फ्रेश सर्टिफिकेट मेरे नाम पर दे दो। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये कि वो जो इसमें जो वर्ड यूज है वो ये है, transfer of package policy in the name of transfer can be done only on getting acceptable evidence of sale and fresh proposal form duly filled and signed। इसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बिकॉज थिंग इज दैट इसमें जो वर्ड यूज है, एक एक्सेप्टेबल एविडेंस यूज है और एक ट्रांसफर। यूजुअली सब लोग ये कहते हैं कि ट्रांसफर तो मैं तब करवाऊंगा ना जब मेरे आरसी पे नाम चेंज होगा, तो इंश्योरेंस कंपनी मेरी पॉलिसी पे नाम चेंज करेंगे, बट दे टेक ए स्टैंड, ऐसा नहीं है। GR 17 में स्पेसिफिकली मेंशन है आफ्टर गेटिंग एक्सेप्टेबल एविडेंस ऑफ सेल, और एक्सेप्टेबल एविडेंस ऑफ सेल क्या होगा कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ओरल, इवन ओरल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट, वो जो आपका आपने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट किया आप इंश्योरेंस कंपनी को वो दे सकते हो कि दिस इज अवर एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज दैट वी हैव सोल्ड दिस व्हीकल एंड सच अमाउंट। अब ये गाड़ी मेरे पोजीशन में नहीं है, पोजीशन हैज आल्सो बीन टेकन, वंस द पोजीशन इज कंप्लीट दैट मींस सेल इज कंप्लीट एज पर सेल्स ऑफ गुड एक्ट। अकॉर्डिंगली फिर हम 50 रुपीज दे के हम लोग ये चेंज हो जाएगा नाम, तभी क्लेम ले पाएगा। क्या होगा कि अदरवाइज अगर मैंने गाड़ी बेच दी है, अगर मैं उसके बाद क्लेम करता हूँ
तो मेरा इस गाड़ी पे कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो इट इज ए वर्ड इज ए नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बिकॉज मेरा फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा। नेक्स्ट थिंग इज दैट अगर सुपोजिटली मैं कहता हूँ कि चल मैं नहीं लॉन्च करता, मैंने तो गाड़ी बेच दी है, जिसको बेची है मैं ये कहता हूँ कि यार तू क्लेम कर ले, तू क्या करते हैं वो लोग क्लेम करता है, वो बंदा जिसको गाड़ी बेची है मैंने। तो इंश्योरेंस कंपनीज ऑल यूजुअली सब लोग हम लोग ये स्टैंड लेते हैं कि बिकॉज इंश्योरेंस कंपनीज का स्टैंड होता है इंश्योरर हैज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद यू। जो मैंने पॉलिसी दी है, मैंने पॉलिसी तो इस इंश्योर्ड को दी है, फॉर मी यू आर ए थर्ड पार्टी, आप मेरे लिए एक प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, मेरे लिए का मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपसे हुआ ही नहीं कभी भी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके पॉलिसी में इस बंदे से हुआ था, तो मैं इसको क्लेम दूंगा। और वो जिससे क्लेम होता है उसको क्लेम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि नो इंश्योरेबल इंटरेस्ट आ जाता है, और जिसको हम लोग बेच दिया होता है वो जब क्लेम करता है उसको इसलिए नहीं मिलता क्योंकि नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि उससे मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है इंश्योरेंस कंपनी का। इसलिए दोनों सिनेरियो में क्लेम नहीं मिलता, ना उसको मिलता है ना इसको मिलता है। तो बेस्ट इज दैट कि हम लोग GR17 विद इन 14 डेज के अंदर अंदर जब हम गाड़ी बेच देते हैं तो हमें इसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज आपको क्लेम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आई विल डील विद, ये तो हो गया GR17। अब एक है GR27 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। GR27 बेसिकली डील्स विद नो क्लेम बोनस। जैसे वी नो दैट हम लोग जैसे मैं एग्जांपल दूंगा विशाल की, विशाल इज वेरी फॉन्ड ऑफ टेकिंग दिस नो क्लेम बोनस, बिकॉज ये विशाल की गाड़ी को कभी भी क्लेम नहीं ये लोग ये लेते, नहीं इनकी नहीं, गाड़ी का नो क्लेम I'll come बोनस to बहुत that. हाई रहता है। I take a claim but still I get the NCB. I'll tell you how. तो ये हमेशा बेनिफिट लेते हैं, 5-5 साल का क्लेम नहीं होता, तो उनका देयर इज ए चार्ट इन द IIMT दैट आपको कितने कितने परसेंट के हिसाब से अगर आप 1 साल क्लेम नहीं लेते, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपका वो जो प्रीमियम है वो बहुत कम हो जाता है, तो आपको उसको प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है इन नो क्लेम बोनस में। नो क्लेम बोनस बेसिकली क्या, ये ऑन डैमेज के लिए बनाया गया है, नॉट फॉर द मोटर ट्रेड पॉलिसीज। जो मोटर ट्रेड पॉलिसीज होती हैं उनमें रोड ट्रांजिट रिस्क कवर होता है। जैसे गाड़ी नई परचेज, जैसे गाड़ी नई होती है, ब्रांड न्यू व्हीकल्स होते हैं, वो जो जब मार्केट में आते हैं, जब शोरूम्स में आते हैं, तो मोटर ट्रेड पॉलिसीज लेके आते हैं, उनको सिर्फ टू एंड फ्रो जो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट में सिर्फ उनका रिस्क होता है। और जब तक कुछ लोग रिस्क आगे भी ले लेते हैं कि जब उनके अंदर ही कोई एक्सीडेंट हो जाए, अभी गाड़ी तो बिकी नहीं है, गाड़ी तो शोरूम में ही है, अगर वहां उसको उतारते वगैरह कुछ डैमेज हो जाए, तो उन्होंने भी जो ये जो होते हैं डीलर्स होते हैं उन्होंने भी इंश्योरेंस करवाई होती है पहले गाड़ी की जो ब्रांड न्यू है, उसके बाद वो बल्क में होती है, बल्क इंश्योरेंस होती है दीज व्हीकल्स की, उनमें व्हीकल्स नंबर मेंशन होते हैं, उसके बाद आप वो गाड़ी बिक जाती है तो फिर इंडिविजुअल पॉलिसी चली जाती है, पर वो जो कवर है ये उनको नहीं मिलता। ऐसे ही फायर में जो पॉलिसी होती है, जो फायर थेफ्ट रिस्क होती है, उनसे उनमें भी एप्लीकेबल होता है इसमें, पर थेफ्ट कंपोनेंट प्रीमियम का नहीं होता। एनसीबी में एक चीज है कि एनसीबी क्या होता है, कैसे मिलता, कैसे एनसीबी, विल गो टू दैट एस्पेक्ट। कई बार तो हम लोग खुद ही डिस्क्लोज कर देते हैं, या इंश्योरेंस कंपनी दूसरी से कंफर्म कर लेती है पहले इंश्योरेंस कंपनी से कि ठीक है ये इसका नो क्लेम बोनस बनता है, तो क्या हमें बताओ, तो वो नो क्लेम बोनस उसको आप वो पूछ लेते हैं, वो अकॉर्डिंगली आपको मिल जाता है। अगर जैसे अगर आप नहीं बता पा रहे, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है कि आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो इट्स नियर ऑन योर डिक्लेरेशन, यू डिक्लेयर इट, कि दैट आप प्रपोजल फॉर्म में एक डिक्लेरेशन साइन करते हो कि मैंने कोई भी क्लेम लिया नहीं लिया, और मैं ये डिक्लेरेशन देता हूँ कि कोई क्लेम नहीं लिया और मुझे नो क्लेम बोनस दिया जाए, तो यू विल गेट ए नो क्लेम बोनस। और उसमें एक चीज मेंशन होती है, अगर आपने नो क्लेम बोनस लिया है, बाय चांस ले लिया है, तो सेक्शन 1, वो कहते हैं सेक्शन 1 का जो पॉलिसी है वो फॉरफिट हो जाएगी। ये विशाल ने चार्ट दिखाया नो क्लेम बोनस का, ये You can see now GR. दैट GR नो क्लेम stands बोनस for कैसे general जैसे rule. जाता है, 40%, 20%, 25%, 35%, आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years 50%, दिस इज ए नो क्लेम बोनस, ये ऐसे जाता है यूजुअली। तो अगर आप डिक्लेरेशन जब गलत चूज कर देते हो,
तो आपको जो सेक्शन 1 में क्या होता है, सेक्शन 1 में ओन डैमेज पार्ट होता है। जैसे आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया कल को, तो इंश्योरेंस कंपनी प्ले लेती है कि नहीं, आपने जो डिक्लेरेशन थी वो गलत दी थी, यू हैड ऑलरेडी टेकन द क्लेम फ्रॉम अनदर इंश्योरेंस कंपनी इन प्रीवियस पॉलिसी, तो आपका आईएमटी में मेंशन है कि सेक्शन 1 आपका फॉरफिट हो जाएगा। बट इसमें भी एक पॉइंट है कि इंश्योरेंस कंपनी को भी विद इन 27 डेज में अगर आप डिक्लेरेशन गलत भी देते हो, उन पर भी ड्यूटी कास्ट है। देयर इज ऑब्लिगेशन ऑन इंश्योरेंस कंपनी आल्सो दैट विद इन 21 डेज में वो प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनीज को एक लेटर लिखेगी और उससे कंफर्म करेगी, क्लैरिफाइड करेगी कि हाँ ठीक है, दैट इज ट्रू कि इस व्हीकल का कोई पहले क्लेम तो नहीं था। अगर वो है तो आपकी पॉलिसी कैंसिल कर सकती है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है, कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता। नो अभी रिसेंट जजमेंट आई है नेशनल कमीशन की, हायर बेंच की, जो ये कहते हैं अगर आपने एनसीबी गलत ले लिया है, जैसे आपने डिक्लेयर नहीं किया प्रॉपरली और आपने उसका बेनिफिट ले लिया है और जितना परसेंट लिया है 25% लिया है, 30% लिया है, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने भी सेक्शन 27 में जो ऑब्लिगेशन है उसने कंफर्म नहीं किया, तो आपका जो परसेंटेज ऑफ क्लेम है, जितना आपने गलत क्लेम लिया है वो ही आपका डिडक्ट होगा, सारा डिडक्ट नहीं होगा। दिस इज इन रिगार्ड टू दैट नो क्लेम बोनस। नाउ आई विल कम लेटर ऑन एक कवर है अब GR36, विशाल GR36। I'm just taking it out. It is a personal accident cover under the motor policy. क्या होता था कि इट इज ए कंपल्सरी पर्सनल एक्सीडेंट कवर। ये जो कवर है इसमें 3-4 पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो इसकी लिमिट थी इस कवर की, पहले तो सिर्फ 2 व्हीलर में 1 लाख का कवर था और 4 व्हीलर में 2 लाख का कवर था। बट आफ्टर दैट अब नाउ IRDA ने परमिट कर दिया है कि इसका कवर 7.5 लाख का कर दिया उन्होंने 2 व्हीलर में, और 4 व्हीलर में भी कुछ बढ़ा दिया है कवर। पहले तो ये कवर बहुत कम था तो इंश्योरेंस को ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं थी, अब ये कवर बहुत ज़्यादा हो गया, इसका प्रीमियम भी सर्टेनली ज़्यादा हुआ, तभी ये जो इसका वो सम इंश्योर्ड है वो बढ़ गया। इसमें क्या होता है कि कंपल्सरी एक्सीडेंट कवर फॉर ऑनर ड्राइवर, ये क्या होता है, इट इज एप्लीकेबल टू बोथ लायबिलिटी पॉलिसीज एंड पैकेज पॉलिसी। इसमें एक चीज स्पेशल थिंग देखने वाली ये है कि owner of the insured vehicle holding an effective license is termed as owner driver for the purpose of this section। क्या है कि ये कवर जो है एज पर GR36 ये सिर्फ ऑनर ड्राइवर के लिए कवर है। और who is the owner driver now, ये देखने वाली बात है कि ऑनर ड्राइवर कौन होगा। ऑनर ड्राइवर होगा जो बंदा रजिस्टर्ड ऑनर होगा। अगर कोई रजिस्टर्ड ऑनर नहीं है तो उसको ये कवर नहीं मिलेगा, बिकॉज ये कवर जो है स्पेसिफिकली ये कवर जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, कंपनीज को ये कवर उनको नहीं दिया जाता एज पर दिस GR36। ये कवर सिर्फ इंडिविजुअल को ही मिलता है। ड्यू टू दैट रीजन उन्होंने ये कहा है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए और आप रजिस्टर्ड ओनर होने चाहिए। अगर ये दो चीजें नहीं आप फुलफिल करते तो यू विल नॉट गेट दिस कवर। दिस कवर इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड अप टू, ये शायद विशाल आप नीचे ड्रैग करना है, नीचे मेंशन भी है GR36 में कि ये इसकी कंडीशंस हैं, कंडीशंस GR36 की। नीचे थोड़ा और करना है, नीचे कंडीशंस हैं GR36 की जिसमें ये मेंशन है नहीं 37 आ कि ये कवर कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। वो कहीं डिस्क्राइब्ड है पर यहाँ नहीं है वो। ये कवर कैन नॉट बी ग्रांटेड। इसमें भी बहुत डिस्प्यूट होता है एक्चुअली। इसमें भी ये चीज है कि लोग ये कहते हैं इंश्योर्ड किसी की डेथ होती है, जैसे इंश्योर्ड देयर आर 2 सिनेरियोज। इन वन केस व्हेन इंश्योर्ड इज ड्राइविंग द व्हीकल तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो कवर तो उसको मिल जाएगा अगर वो ड्राइव कर रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि जैसे इंश्योर्ड सिटिंग इन अ रियर सीट, वो बैठा पीछे है और इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है अपनी गाड़ी में, तो उसको क्या क्लेम मिलेगा, whether he is entitled for a claim। और कंपनीज का क्या व्यू रहता है, उनका ये व्यू रहता है कि बिकॉज एज पर GR76 देयर आर 2 कंडीशंस, बिकॉज दिस कवर इज प्योरली ए कॉन्ट्रैक्चुअल और ये कवर सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलता है, कंपनीज को कवर नहीं मिलता। इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इसमें वन शुड बी ए रजिस्टर्ड ओनर एंड वन शुड बी ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अब कंपनीज का क्या कहना है कि
बंदा पीछे बैठा है, उसके पास अगर लाइसेंस नहीं है, ये मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कवर है और GR36 कहता है अगर वो लाइसेंस देगा ये कवर मैं तभी दूंगा उसको. If he doesn't have any license, even sitting on a rear seat, the claim will not be paid. यहाँ ग्रे एरिया है. यहाँ एक्चुअली जजमेंट जो नेशनल कमीशन की है वो तो ये कहती हैं दैट इज ओके. इफ GR36 ये कहती है अगर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तभी मिलेगा. बट आई थिंक आई हैव नॉट गॉन थ्रू एनी हाई कोर्ट जजमेंट ऑन दिस पॉइंट कि GR36 में ऐसा लिखा है. ये सब डिसाइड किया हो. मुझे शायद विशाल ने, अगर आपने IMTs में स्पेसिफाइड है. आपकी आवाज म्यूट है विशाल. आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस. IMTs में स्पेसिफाइड है. IMTs में आई एम नॉट हियरिंग विशाल. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. कैन दी अदर हेयर? बाकी सब सुन सकते हैं मेरे को? हाँ हाँ. some problem at your end, Sachin. Everyone can hear me. I'm not able to hear you, Vishal. Actually, there is some problem. I don't know what is going on. But ये debatable है ये point because एक लेमैन का यही कहना है कि अगर मैं पीछे बैठा हूँ और इंश्योर्ड पीछे बैठा है, अगर वो उसके पास मैं लाइसेंस नहीं भी लेता तो what is the requirement for that if I'm not driving the vehicle? But ये cover यही कहता है कि 37 तभी मिलेगा जब you are a registered owner and you have a license. तो if अगर तो कुछ जजमेंट होगी तो आई विल शेयर विद यू 5 कोर्ट जजमेंट. मुझे अभी तक नहीं मिली जजमेंट इसके रिगार्डिंग. आई थिंक जस्टिस कानन ने हेल्ड किया ये एक दो बार ऐसा कि GR36 है ना विशाल? हाँ हाँ. कैन यू हेयर मी? हेलो Sachin, can you hear me now? हाँ, नाउ इट्स ओके. ये इस पर थोड़ा सा ग्रे एरिया है बिकॉज GR36 तो यही कहता है कि बिकॉज यू मस्ट हैव ए लाइसेंस, रजिस्टर्ड ऑनर और लाइसेंस. इफ यू आर सिटिंग असाइड और नॉट, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है. नेशनल कमीशन की जजमेंट्स उस पर मिल जाएंगी आपको, स्टेट कमीशन की मिल जाएंगी. बट हाई कोर्ट में मेरे को लगता है ये मैटर अभी गए नहीं है बिकॉज इट इज प्योरली कंज्यूमर मैटर्स. अनलेस एंड अंटिल PLA का कुछ ऑर्डर कुछ चैलेंज होता है हाई कोर्ट में तो हाई कोर्ट डिसाइड करती है रिट में. तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. That is the reason most of the cases of such type of no insurable interest and these all, because we all have judgments of national commission on this point, not the high court, because अभी मैटर गए नहीं है कभी भी हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा ये no insurable interest and all. Now I'll go further. This is something else, Pasim. Sorry, this is something else. We are talking about if the owner is sitting besides, not driving the vehicle and dies in the accident. Am I right, Sachin? exactly. ये वो नहीं है, ये कुछ और चीज. ये जो इससे पहले सचिन बात कर रहा था ये वो है. ये जो आपने जजमेंट निकाली है, हाँ, this is something else. हाँ वो उसमें उन्होंने GR36 वो है. इट इज इन रिस्पेक्ट टू द सेक्शन 163A. 163A में जो इंश्योर्ड क्लेम डाल देते हैं, एक्चुअली ये जजमेंट उसके ऊपर है, पॉइंट है. जस्टिस कानन हैज अ जजमेंट ऑन दिस पॉइंट दैट कि जो 163A में अगर इंश्योर्ड क्लेम डालता है तो ही शुड बी ए, अगर उसको एक्चुअली क्या था कि सब लोग ये कहते थे राइडर्स एंड नॉट थर्ड पार्टी. असी ने भी ये पॉइंट डिस्कस किया था कि राइडर्स एंड नॉट थर्ड पार्टी तो क्लेम पेबल नहीं है. तो कई बार वो क्या कहते थे अगर ठीक है if the person is stepping into shoes of the owner then at least उसको GR36 का तो दो, उसको पर्सनल ऑनर का कवर तो दो. वो ये चीज ये कहते थे. तो जस्टिस कानन का व्यू था steps into shoes of the owner doesn't mean he become a real owner. He will not be a registered owner. And as per section GR36 of the Indian Motor Tariff, वो कवर तभी पेबल होगा अगर वो ही इज अ रजिस्टर्ड ऑनर. तो ये जजमेंट उस पॉइंट पर थी. बहुत सारी जजमेंट्स हैं इस पॉइंट के ऊपर कि 163A में जो राइडर और नॉट थर्ड पार्टी को वो जो मिलेगा क्लेम जो इंश्योर्ड का वो नहीं मिलेगा बिकॉज द वर्ड इज ऑनर ड्राइवर. एंड व्हाट इज ऑनर ड्राइवर? ऑनर ड्राइवर मींस जो रजिस्टर्ड ऑनर होगा और वो ड्राइव कर रहा होगा. mere saying that कि steps into shoes of the owner, वो ऑनर नहीं बन जाएगा. और ये जो कवर है प्योरली ये GR36 डील करता है. तो GR36 में क्लियरली मेंशन है कि डीएल होना चाहिए, रजिस्टर्ड ओनर होना चाहिए. तो दिस इज द जजमेंट इन दिस रिगार्ड विशाल, है ना? आई एम राइट? एम आई राइट? Correct. नाउ आई विल गो फर्दर. आई थिंक फ्रॉम GR36 I think 5 o'clock
we'll probably have to conclude unless other, because everyone would like to ask questions. उसमें कभी काफी time लगेगा. I'll go fast. I'll go fast. Okay. Actually, this topic, these are the add-on covers are IMT. You cannot complete in a one day, or that even I tried my best to to cover the important topics so that in everyday daily what we use, we should know that. Another is a GR 39, which Asim was also discussing, that third party cover. In a package policy and liability policy, third party property damage cover is there. वो 7.5 लाख और वो जो भी था. But there was a point another क्या होता था कि पहले there was a knock to knock agreement. इसमें भी there was a defense. अब वो knock to knock agreement कभी renew ही नहीं हुआ, I think. उसमें क्या होता था कि every insurance company अपना अपना claim देगी. मेरी गाड़ी में एक्सीडेंट किसी से हो जाता है, मैं अपनी गाड़ी का क्लेम अपनी इंश्योरेंस कंपनी से भी ले सकता हूँ, और थर्ड पार्टी डैमेज जो सामने वाला व्हीकल है उससे भी ले सकता हूँ. तो इंश्योरेंस कंपनी हैज ए सेटलमेंट दैट नॉक टू नॉक एग्रीमेंट, कि अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट मेरे व्हीकल से हुआ है तो मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी से ही क्लेम करूं, मैं सामने वाली गाड़ी से ना लूं, क्योंकि मेरे पास पॉलिसी है. तो ये नॉक टू नॉक एग्रीमेंट अभी कभी आगे गया नहीं, तो इसीलिए लोग अपने इंश्योरेंस से भी ले लेते हैं कई बार और सामने से भी ले लेते हैं. वो दैट इज अ सेपरेट थिंग. व्हाट इज आवर डिफेंस दैट कि उन्होंने वहां से भी ले लिया, डबल बेनिफिट नहीं ले सकते आप लोग. दैट विल आल्सो कम लेटर. Next is GR41. It deal with the electrical and electronic fittings. क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स लगवा सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड ऑन योर आरसी. अगर आपने जैसे हाई वोल्टेज सायरन लगवा लेते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, उसमें सायरन तो लगवा लेते हैं, जब आपका क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी रेपुटेट करती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हीटिंग हो जाती है वायर से, जो आप नॉन जेन्युइन सायरन लगवाते हो, जैसे आप आरसी में उसको लगवाते नहीं हो, प्रॉपर्ली फिट नहीं होता, तो जब गाड़ी चलती है या हॉर्न देती हो तो वायर्स गर्म होकर आप गाड़ी में स्पार्किंग हो जाती है, गाड़ी जल जाती है. तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे नहीं करती अनलेस एंड अनटिल यू हैव टू क्लियर दैट कि मैंने गाड़ी में ये हाई वोल्टेज सायरन लगवाया और मैंने इसकी एंडोर्समेंट आरसी में करवा ली है. तो आप उसको पे करने के बाद अगर कुछ लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू फॉर दैट ऑल्सो. आगे है, नेक्स्ट इज सीएनजी किट जैसे होती है. सीएनजी GR42 डील्स विद सीएनजी एलपीजी फ्यूल. आप एलपीजी सीएनजी भी लगवा सकते हो, बट फॉर दैट आल्सो यू नीड टू गेट एंडोर्स ऑन योर आरसी फर्स्ट. अगर आपने आरसी में एंडोर्समेंट नहीं करवाई और आपका क्लेम आता है तो इंश्योरेंस कंपनी कैन रेपुटेट द क्लेम सेइंग दैट कि आपने इसका एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं दिया और हमें पता नहीं है कि आपने ये पॉलिसी में अपनी गाड़ी में ही चीज लगवाई हुई थी, और जो गाड़ी में स्पार्किंग हुई है कुछ भी हुआ है, इट इज ड्यू टू दैट रीजन आल्सो. Next is we all know IMT7 जो होती है व्हीकल सब्जेक्ट टू हाइपोथिकेशन. अगर हमने लोन ले रखा है तो ये गाड़ी का, तो गाड़ी पर हाइपोथिकेशन एंट्री होती है. वो इसलिए होती है क्योंकि गाड़ी का टोटल लॉस होता है, तो जो पहला राइट होता है वो फाइनेंसर का होता है, राइट. यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट. दिस इज यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट सेइंग कि मैंने अगर 7 लाख का लोन ले रखा है तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से 7 लाख नहीं ले सकता, बिकॉज देयर इज अ हाइपोथिकेशन. द फर्स्ट राइट है जो फाइनेंसर का राइट है, उससे सेव होता है इसमें कि अगर क्लेम पहले इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंसर को सेटल करेगी, फाइनेंसर को सेटल करने के बाद ही आफ्टर दैट वो आपको जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको मिलेगा. आप बिजी होंगे ना, आजकल बहुत कुछ चल रहा है. मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे मैंने बनाया थोड़ा वो कोर्स करेगी मेरे साथ, तो मुझे सिर्फ ये पूछना है कि आपने जब वो एक कॉल की थी तब वो थी आनंद रजिंद्रन जी के कोर्स के बारे में. Vikas, are you talking to us? मुझे भेजा ये पता नहीं चल रहा. विकास किसी और से बात कर रहा था ऐसे. ओके, अच्छा. नेक्स्ट इज दैट IMT 10. इट्स ऑल्सो रेलिवेंट. पहले ये बहुत रेलिवेंट होती थी एंटी थेफ्ट डिवाइस. जैसे हम लोग अपनी गाड़ियों में एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाते हैं, पहले क्या होता था कि अगर हम एंटी थेफ्ट डिवाइस लगाते थे तो हमें प्रीमियम में वो मिलता था, 5% का बेनिफिट मिलता था. अब ऐसा वो नहीं है, अब नहीं है ऐसा. अब पहले ऐसा हुआ करता था. अब तो हम लोग लगवाते हैं पर इंश्योरेंस कंपनी उसमें हमें कोई बेनिफिट नहीं देती है, वो कहती है कि ठीक है. We'll have to conclude, I think so. The section, everyone is wanting that it should conclude. We can continue other day. क्योंकि अभी questions भी पूछने करने.
हाँ ठीक है, मतलब लाइक बेसिकली जो है बाकी IMT 29 है, IMT 23 है, बहुत सारी देर आर अदर IMT आल्सो दैट विल कवर सम अदर डे, बट इफ एनीवन हैज, जितना हमने कवर किया बेसिकली वो दैट इज फॉर आवर डेली रूटीन आल्सो, जो हम लोग कोर्ट में भी देखते हैं, जो हम लोग रूटीन में देखते हैं. आई थिंक इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन ही कैन आस्क फॉर दैट क्वेश्चंस, है ना? If you want, I can. If you want, I can just sum it up. जो Yes. ने कहा, सचिन ने कहा, should I sum it up? एक सेकंड. Nilesh, if you could just unmute everyone for 2 minutes. Nilesh, you are the host. I'm the host. If everything is clear, it's fine. If you want, I can sum it up. हाँ ना बोलो भाई. Questions? Yes. What about questions? Then we can go to questions. You want me to sum it up, or we go straight away to questions? No, you sum it up first. I thought you were saying that if there are no questions, then I'll sum it up. नहीं. मैं तो just what Sachin has said, I could just sum it up. Yes, please. ठीक है, फिर I'll do that, and then we'll begin. See, the issue out here is basically there are two aspects to what Sachin has already covered everything, but I'll just give you a gist of it. The aspect is whenever you buy a policy and whenever you do a case for your client, there are two aspects which you need to consider. Whenever you buy a policy, you generally do is that let's look in for the minimum premium and buy this policy. It is not like that, and it should not be like that. Now, as far the third party premium is concerned, it is fixed by IRDA every year. वो तो सारी कंपनीज का सेम होगा. जो ओन डैमेज प्रीमियम होता है, जिसको हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी भी कहते हैं, वो डिफर होती है. वो उसमें अपने he has already discussed the de-tariffing, so they can reduce it, increase it as per their own whims and fancies, or whatever they feel is comfortable giving that, so that you can compare. But what is most important out here is that you must look in for the necessary covers, which is very important. It is not about just the decrease of premium. The issue is that how much what are the covers you require. I'll give you my example. Whenever I take an insurance policy, I look for 3-4 aspects. Suppose the car meets with an accident. I am having a no claim bonus of 50%. That means if I take a claim, that no claim bonus is gone, 50% altogether. So if I take a claim, that means I'm losing on NCB cover. At the same time, if I have not taken a DEP cover, that is depreciation cover, that means whatever the claim is, presuming 1 लाख रुपए का expense है, उस पे depreciation कट जाएगी and I will have to pay that from my pocket. Presuming it's a 5-year-old car, तो तकरीबन सोचो कि 50% will be footed from my pocket. So in 5 years, even once if the car meets with a major accident, you've actually lost premium for 2 decades, not of 5 years, for 2 decades. What are the covers you should look for? One is always take a DEP cap. I would recommend that. मैं तो 7 years तक ले लेता हूँ. In case of any damage, you pay nothing. You just pay the excess clause, which is 1,000 to 2,000 rupees, depending upon the cubic capacity of your vehicle. Second, मैं जो खुद जरूर लेता हूँ, वो मैं लेता हूँ ये NCB protector. That's a very beautiful cover. God forbid, if you take a claim, even then your NCB remains the same. फर्क कितना है? 3,000 रुपए का. जैसे मेरी नोवा पे 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगते हैं, जिससे मेरे को वो होता है एनसीबी प्रोटेक्टर मिल जाता है. एंड इवन इफ आई टेक अ क्लेम, द एनसीबी कवर रिमेन्स द सेम. नाउ द डिफरेंस आई विल टेल यू. व्हेन आई बॉट एन इनोवा, द इंश्योरेंस वाज फॉर ₹90,000. I got the 90,000 रुपए, and I transferred the NCB from the other vehicle, which was 35%, और वो करते कराते आ गया 52,000 रुपीज. उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर मैंने रिन्यू कराई, वो एनसीबी बढ़ के हो गया 45, पता नहीं 45% हो गया वो. दिस ईयर आई पेड 21,000 rupees for the same Innova in second year itself. Now that's the difference if you take these covers and retain them. अगर आप आपने एनसीबी प्रोटेक्टर लिया हुआ है, तो आप समझो कि आपने जब नेक्स्ट व्हीकल लोगे, आपको 50% एनसीबी ट्रांसफर हो जाएगी. That 90,000 straight away comes to 50,000, 45,000. That is the amount you save. So these covers you must look for. ये जो एक कवर है, presuming you are living in an area where you are always wary of thefts, तो आपको वो कवर जरूर लेना चाहिए, return to policy cover. What is that cover? 5 years down the line,
आपकी कार की आईडीवी जो आपने 15 लाख रुपए की खरीदी थी, वो आईडीवी होगी तकरीबन 6-7 7.5 लाख रुपए। जब आपको नहीं खरीदनी है, वो 15 लाख वाली है, वो 20 लाख की हो चुकी होगी इन ऑल प्रोबेबिलिटी। इफ दैट कार goes for total loss or there is a theft, the amount you will get is 7.5 lakhs, the IDV. Now you have to buy a new vehicle. That means you put in 12.5 lakh rupees from your pocket. यही अगर आपने रिटर्न टू पॉलिसी कवर लिया हुआ है, you will get 15 lakhs, and what you need to add is just the 5 lakhs rupees. So this is also a very beautiful cover which you must take. Those people who keep a driver, they must take PA cover, as he is already explained, is personal accident cover is only applicable on owner cum driver. It has to be read as owner cum driver. So owner who is driving the vehicle is only entitled for this cover. If you have someone else driving the vehicle, be it your family member, be it your outside, be it your friend, be it a borrower, be it a driver, none of them is covered. None of them is ever covered. So presuming you have a driver, you can always pay extra premium of 100 or 200 rupees. That's a PA cover for driver. So that you must take. That will give, in case God forbid you are sitting behind, once vehicle meets with an accident, the driver dies, he immediately gets 2 lakhs, 3 lakhs, 5 lakhs, whatever it is. It's a very useful cover. So ultimately for 100, 200 rupees, otherwise you feel like that you have a moral responsibility of helping their family. वो काफी हद तक आपकी ward off हो जाती है, one aspect. And then he discussed about IMTs. So what is IMT? That is India Motor Tariff. I'll just show you this thing once again. You must read this. You must read this. Just read this when it comes. What is India Motor Tariff? It is the Tariff Advisory Committee have laid down rules, regulation, rates, advantages, terms and conditions as contained herein for transaction of motor insurance in India in accordance with the provisions of Part 2B of the Insurance Act 1938. The tariff supersedes the provisions of India Motor Tariff in existence up to 30th June 2002. The provisions of this tariff are binding on all concerned, and any breach of the tariff shall be a breach of the provisions of the Insurance Act. What I intend to tell you is, I'll just show you the index. GR stands for General Regulations, then Section 2 covers tariff for private cars, then tariff for motorized two-wheelers, then tariff for commercial vehicles, proposal forms, standard wordings, IMTs, statistical codes. What I intend to show is 97% of the lawyers, I would say, only knows is Motor Vehicles Act. That is all. If you read the Motor Vehicles Act, that's the end of it. No, it is not. In everything, Motor Vehicles Act is much shorter. This, you just see the pages. This is 222 pages, much larger than your India what your Motor Vehicles Act. This contains each and every description of all the covers which are available to you, how they are to be dealt with, what all is covered under that. Everything is there. Rights of insurer as well as insured, everything is covered. So whenever these would actually come into play when you're doing consumer cases or own damage cases and all those, generally they come over there. They are very helpful and are referred to. I would say that I have won 90% of the cases by referring to them, which the other lawyer doesn't know at all. Whenever you go, you just read your insurance policy and you go. You don't read what is GR, that's general regulation, or IMT, that is the India Motor Tariff. If you say here that GR, there are 48 GRs which covers different topics, and then thereafter the IMT start. I'll show you any one IMT. You will see that in all GRs there are some IMT or the other which is referred to. I'll just show you the IMT. See, section 7 is IMT. So IMT 1 talks about extension of geographical area. IMT 2 agreed value clause, transfer of interest, change of vehicle, hire purchase agreement, lease agreement. Every IMT has a very specific purpose which one must refer to when you prepare your cases for argument
on these issues. Your IMTs will tell you that where you stand. There are times that people do not disclose you the IMTs which are in your favor, but there will be times they'll disclose those IMTs which are against you. You are bound to lose a case if you do not know which IMT is in your favor. You'll have to read this. Just go and put in your search, and the relevant IMT would come, which will guide you how to prepare your. So this is all about it, which IMTs, the GRs, Sachin has already discussed. I am not going into it. This PA cover, see, IMT 17 is there, which discusses as to how, what is for death, it's 100%, loss of 2 limbs 100%, loss of 1 limb 50%, permanent total disability 100%. It gives you everything. And further, personal accident to unnamed hirer and unnamed pillion passengers, as I was saying, that you can buy extra covers. That all is covered under IMTs. Right? So this document is a very important document. You must note it down, and if need be, must refer to at the time of preparing the case. I sum up over here, and I think we can start with the questions. As I'm unmuted all, everyone can start with the questions if you want. 2 4 8 को यूज करते हुए 4